So, Bhaiya, the first question is with regards to the idea of faith. Mhm. And since I was a child, I had a very atheist uh, childhood. Matlab, I could not understand the concept of faith as a very small child. Mm. Uh, I've always thought worship is a form of bribery, as in you go to a particular god during a particular time, asking for a particular thing, and after that you forget. Matlab, you do a puja, and I always thought India's corruption problem begins with our system of bribery with God. Very nice, Rahul. So so whenever people told me, look, I hear about bhakti all the time and this idea of faith all the time, I could never comprehend it or understand it or take it further, or it never was a strong part of my life. It was never a pillar in my life. So off late, after experiencing meditation, I see that there is something there, but I do not know what. But still keep asking myself, okay, what is there? What is faith? What is life? I would really like to know from your point of view, what is faith for you? What is faith for me? Yeah. Very difficult to say for me personally. अरे प्रश्न तो तुम्हारा था, मेरे ऊपर डाल दिया बदमाश. बहुत स्मार्ट है. It's like it's मेरा इंटरव्यू हो रहा है जब the idea was to support you and help you. बहुत चालू है देखो, ऐसा चालू प्रश्न इसीलिए इसने फेसबुक लाइव से बाहर हटाया. The see in my life, I mean, yes, if I were to be very honest with you, बचपन से I grew up with listening to Guru Nanak Dev Ji's stories, and my dada dadi used to tell me one story a day. जब तक और मैं उन्हीं के साथ सोता था. मेरी दादी और मेरे दादाजी मेरे को सुलाते थे. तो मेरे को याद है कि जब तक वो नहीं मेरे को स्टोरी सुनाते थे, मैं नहीं सोता था. मेरी आज की कहानी जब तक वो बताते थे, तो दे वुड टेल मी सो मेनी स्टोरीज अबाउट गुरु नानक, एंड उसमें कबीर की भी आ जाती थी नेचुरली. From a Sikh tradition, it was very strong, and I was very intrigued by the idea of Guru Nanak, finding this light within and joy within, and then spreading that all over the world wherever he went. And when I grew up, I had a very strong feeling inside of me that if Nanak can do it, so can I. If Jesus can do it, so can I. I never used to feel any distance between myself and Nanak, या myself and Jesus. मेरे को लगते थे सभी अच्छे हैं, और सभी ने जन्म तो इसी धरती में लिया है, और जन्म भी इंसानी रूप में लिया है. For you in English, that they have been born as normal human being, and where is this echo coming, man? This echo is coming because of you. Anyway, so I mean, for me, I never used from childhood. I never used to think that somebody is greater than me or somebody is smaller than me. Because I used to see, you open the TV and the magazines and people worship, the actors and actresses, and people are crazy about some people who have some skill or some one greater skill than them. So I see people get either intimidated, or they get like in the space of wow, कि ये लोग बहुत wow है, and शायद I don't have that wow in me. I never used to think like that. For me, everybody is normal. Everybody, you have some skill, you can act, you can drive, you can do cricket batting, you can do something, you can cook. Everybody has some skill. Just because you have one skill more than me does not mean you are greater than me. Are you all getting this? Yes. So मेरे को कभी ये लगता ही नहीं था कि लोग मेरे से ऊंचा और बड़ा छोटे हैं. So for me, faith did not have a role in my life because I never wanted anything from the idea of God. You understand? Because मैं गुरुद्वारे जरूर जाता था, बट गुरुद्वारे जाने का मतलब होता है गरम गरम प्रसाद खाना. वहां जाओ, बंगला साहब जाओ,
एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू बीन टू बंगला साहब गुरुद्वारा. वो जाओगे ना 2 बारी, भाई साहब थोड़ा और गरम गरम घी वाला. भारती ने भी कहा होगा बड़े बारी, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल. तो एंड द जॉय ऑफ मोर देन ईटिंग द, वहां पे खाना जो प्रसाद होता है, टू सर्व, आई वुड लव टू सर्व देम दाल प्रसाद. एंड मैं खुद नहीं खाता था, थोड़े बैठ जाता था, and that space within the gurdwara used to be so beautiful and all. Luckily I was very young when I met Gurudev, and even meeting Gurudev, there was no demand in me. There was absolutely no demand in me. See, at the age of 22, 23, I was successful, luckily, with the grace of my elders and whatever luck would have it. I had everything by the age of 23. And when you have everything, when you don't lack anything, then you don't approach God, temple, Guru with the idea of the word faith was not available to me. I mean, it was not embedded in my mind, or it was not the driving factor in my mind. And I used to do things just because of sheer joy of it. अच्छा लगता है, इसलिए सुबह सुबह गुरु नानक की प्रभात फेरी होती थी तो चले जाते थे, and like I said, I never wanted anything from God. And my idea of God was different. My idea of God was not a person. जनरली लोग सोचते हैं कि भगवान मतलब एक इंसान, या एक इंसान जैसा दिखने वाला एक शक्तिशाली पर्सन. I never thought like that. Faith, late, I started noticing that whenever there was a tough time in my life, whenever I went through personally a difficult time, a difficult decision, or I saw people around me going through difficult time, at that time there was a need to continue. There was a need to go on. There was a need to strengthen your own belief systems, or there was a need to strengthen the very idea that life will continue tomorrow, day after, and so kind of a hope कि everything is okay and everything will be okay tomorrow. And I ascribe that feeling in me, or in everybody around me, as faith. कि there was a certain idea of faith कि I exist and I will continue to exist. There is, and I don't need to ask anybody, because I exist not because somebody made me exist. It didn't seem like an intelligent idea to think I'm alive, somebody made me alive. No, I don't feel that somebody made me alive and somebody is going to make me die. Doesn't seem logical to me. I am. And with Gurudev and his knowledge and the travels that I did worldwide, uh, things opened up in my own heart and in my own mind. And I started understanding really that uh, faith does play a role, but more than faith, awareness play a larger role in my life. So I moved from a childhood belief to complete atheism also sometime in my life, non-belief. But then somewhere I came in the middle. Somewhere I say I understood faith as, uh, हंसोगे आप लोग, इट्स लाइक देसी घी. भाई हलवा बनाना हो तो देसी घी की जरूरत है, या तो इंसान के अंदर स्माइल लगानी हो, मस्ती करनी हो, यू अलाउ दैट पर्सन टू एक्ट फ्रीली एंड मस्त करना हो, तो फेथ एक्ट्स लाइक अ देसी क्यों. जो ना करे माँ प्यो सो करे क्यों. है जी. तो मतलब वो फेथ आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि इट समवेयर it frees you of the fear, of the guilt, of the negativities, and faith also signifies at some level. Uh, this is my observation that the person has innocence alive in them. जो आपकी मासूमियत होती है ना, अगर वो मर जाए तो फेथ नहीं हो सकता. अगर इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग होए तो फेथ नहीं हो सकता. तो कहीं ना कहीं जो लोग फेथ वाले लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बच्चा, एक बचपन, एक मासूमियत जिंदा है. एंड दैट अलाउज देम टू forget the past and move on.
and believe in something larger than life. And for me, that is enough. For me, my idea of God is very different than mm, I am sure everybody else's idea of God, because I don't have the idea of God the same way everybody relate to God. For me, the word God does not exist. You know, I'm not saying God does not exist, but the way people relate to God, it doesn't exist in my mind. So I relate to God as pure existence. You know, so that's why I feel that if existence is taking care of everyone around us, वो एक चींटी का भी ध्यान रखता है नहीं? जब वो एक चींटी का भी ध्यान रखता है, व्हाट यू कॉल एग्जिस्टेंस, तो मेरा नहीं करेगा? मेरे को इसमें इतने घबराने की क्या बात है? So then I started realizing that all the great saints like Guru Nanak Dev Ji, Guru Gobind Singh Ji, all the great, that I was born in that tradition, and then I met Gurudev and I got to know many more saints in India, outside India. Yeah, faith plays an important role, but I tell you, faith stands on innocence. एक भोला भाव है, एक भोला भाव है, एक याद रखिएगा, एक भोला भाव है, तभी फेथ टिका हुआ है. भोला भाव ना होगा, फेथ गिर जाएगा. या सो भोले को ही भाव में आके एक वो एक, इट्स नॉट, यू डोंट ask, you don't become weak, but somewhere you become, helplessness is also not a good word. I don't know what word to say. You become like a child and say, mummy आप कर दो ना, मेरे से नहीं हो रहा है. It's like same way you ask your elder या दादा दादी, दादाजी आप कर दो ना, मेरे से नहीं होता है. Sometimes you even ask your friends, hey man, come, you help me out now, you know. So I don't want to use the word Bharti surrendered or all those things, because people don't understand surrender. होता नहीं है ना लोगों से. बात करने में तो सरेंडर होता है, बट होता कहाँ है? तो I just want to say कि there's something in us which says, yeah, sometimes I'm not able to understand and do a lot of things, and maybe people around me can support me and make it happen for me. So that larger existence, I have faith, will continue the life in every being and support that in every being. वो रखो. हम्म, ज्यादा Yeah, लंबा. nee, but yeah, you actually said a lot of things that were going through my mind, in the sense that one context in which I think about faith is always when I want to overcome certain fear. And another one is, of course, you just said, when I'm too stuck in my intellect, I know that I'm really rigid at times, and logically, when I look at this world, it doesn't make much sense. And those are the times when I've actually questioned this idea of faith. Otherwise, when everything is working normally and all, who actually think, well, at least I don't think about faith. Correct. So actually, what you said made a lot of sense. So when I look back, there were times in my life when I actually had felt that little innocence, when I experienced a little bit of that ghee that you just said. No, so I can relate to that with this beautiful explanation that you gave. My next question is actually very connected to this. The idea of prayer that you just said, कि मुझसे नहीं हो पाता है, आप थोड़ा मदद कर दीजिए. So I started contemplating on this idea of prayer, and I feel that the prayer as a thing, as a thought thing that we put into this existence, it is very powerful, and it actually comes back in our life in a big way. Even like for instance, I've never really had a great relationship with my father. It was a very father-son relationship. And there was a point in my life when I thought, I really wish, well, it came from deep within, that I really wish I had a much deeper relationship with my father. And it actually happened, but the way in which it happened, I could not have thought about it. He went through a little health crisis when I had to be there, and that is when I really got to understand my father and got closer to him. So maybe this is just my little intellect trying to comprehend it, but really, do everything that we ask for really happen in our life? Or should we really be careful about what we ask? I think that we should not really ask anything. What if something we ask in an unaware state comes back and then we can't really handle it?
What is the question? uh, what do I really pray for? Matlab, how is prayer? The prayer has a really powerful thing to it. No? What we ask for will come to us. Should we really pray or just sit and relax and let whatever happen in our life? जब तक आप जब तक आप इस पूरी सृष्टि से अलग महसूस कर रहे हैं, आप प्रे करोगे. Right. The day you experience this whole existence as part of you, the prayers will stop. Because for prayer to happen, there needs to be two conditions. A, you need a cause to prayer. You need something to pray for, right? The second thing is you need to pray to somebody. So when I feel love in me, when I feel total a sense of complete oneness with this existence, what do I pray for? Nothing. To whom do I pray? Nothing. Most people pray for things to happen. Most people pray so that desires could be fulfilled in their lives or some difficult times to be just a faded memory. People don't want the difficult time to continue. But funnily, people fail to realize that that which they call as difficult is nothing but some level of discomfort. The idea of discomfort comes from measurement, or the ego. Is the ego which is experiencing discomfort. The self, the soul, the most subtlest part of you, it never experiences discomfort. So you say there are some good moments in my life, and then there are some not so good moments of my life. So that means you're comparing your blissful days and your non so blissful days. So then that means you're measuring, there is a certain level of measurement in you available, that these are the things which happens, I'm happy, and these are the things which happen, I'm not happy. And that's why when things don't happen according to you, you start praying, God, I'm helpless. Please do something. I don't feel like that. I feel, हाँ आज टांग टूट गया, आज गिर गया, आज एक्सीडेंट हो गया, गड़बड़ हो गया. Things are okay. Things are this way. Things are this. I don't look at things okay outside of me as a challenge. I always I always look at things inside of me as a challenge. So if things are not happening around me, like, it's not easy to live with old parents. Honestly, रैक देखो, ये सारा प्रेयर वेयर मेडिटेशन बेकार हो जाएगा सब. आराम से बैठे होगे, आपका आपके पिताजी यहाँ से बैटिंग करेंगे, मम्मी जी वहां से बॉलिंग करेंगी, आप बीच में कुछ मैंने सैंडविच बन के खत्म हो जाओगे. तो फिर द माइंड इज सो फनी. द माइंड सोचता है, यार ये इतना तंग क्यों कर रहे हैं, ये सिंपल सी चीज क्यों नहीं समझते हैं. अच्छा ये है तो बड़ी, ये चले जाएंगे फिर क्या होगा, शांति होगी बड़ी. बट देन यू कैच योर ओन माइंड. अच्छा देखो, मैं अपने कंफर्ट के लिए किसी को, पंजाबी कहते हैं टोरन वास्ते भी तैयार हाँ. आई एम रेडी दैट पीपल कैन लीव. यू नो the mind is so chalu, it does games with you because the mind wants basically comfort. You know what I mean? So I don't get into this comfort and discomfort game. I catch my mind very fast. So I have nothing to pray for. And who do I pray to? किसको प्रे पूछूं भाई, जब मेरा और मेरे गुरु की शक्ति भी अंदरूनी सेम है. इट्स लाइक वन एप्पल ऑन द ट्री इज आस्किंग अनदर एप्पल ऑन द ट्री, भाई साहब मिठास दे दो थोड़ी सी. हैं? तो दूसरा एप्पल बोलेगा, ओए तू भी तो उसी ब्रांच में लटका है जिसमें मैं हूं, तरफ देख, ढंग से देख ले थोड़ा. So, if we are all part of the same existence, including the avatars, including the gurus and everybody, वो अलग नहीं है कोई. They don't have some special powers. सच बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे, सीधा सीधा बोलूं, सीधी बात है.
people don't have special powers or siddhis. You have special feelings for them. आप ये समझ रहे हैं? We have special respect, honor, and feelings towards the ones we feel are special. And because you feel this way, they are special. If we collectively never felt anything, then these would not be special. भक्त बनाता है भगवान. भगवान की अपने आप में कोई शख्सियत नहीं है. That's why I always feel grateful for all of you to come and join me whenever these sessions happen. I said, यार मेरे को भी कोई सुनने वाला है. मेरे में ऐसा क्या है कि लोग मेरे को इतना प्यार देते हैं और मेरे को सुनने भी आ जाते हैं. So I feel really grateful to all of you that you come. Yeah. So कहने का तात्पर्य है कि मेरे पास किसी को प्रे करने को है नहीं. आंख बंद करूंगा तो कुछ दिखता ही ना है भाई. तो ये अजीब अजीब बातें करते हैं ये सब स्पेशल. कुछ लोग ना कुछ अजीब अजीब आंख बंद करके अंदर देखो. अंदर अरे अंदर क्या खाक देखो. देयर इज नथिंग टू सी इनसाइड. यू नो ये ऊट पटांग अजीब अजीब बातें करते हैं लोग. यू नो द होल आइडिया इज दैट you feel settled, you feel, you know, peaceful from within. And then when you are peaceful, you never ask, you never feel separated from existence and anybody around you. So there's nothing to ask, nothing to pray for. करना है ना, कर लो भाई. You feel good psychologically, थोड़ा सा वो अच्छा लगता है प्रे करके, कर लो. Nothing wrong with it. Absolute nothing wrong with it, because sometimes doing an act creates the feeling and emotion. Yes. वो मियाँ बीबी से पूछो, हाँ भाई 25 साल हो गए, आई लव यू बहुत हो गया, बट समटाइम्स गिविंग अ फ्लावर. सुधीर जी हंस रहे हैं, रेखा जी को बोलते नहीं है जी. समटाइम after such a long marriage, there's nothing wrong ki I surprised you with a dinner, lunch, or a flower, or I'm going to take you out for some fun time. Nothing wrong with it. Do the act. It just the doing the act creates some that space, some nice space inside you. Nothing wrong with it. So if you pray with your closed eyes and you feel that I'm connected, nothing wrong with it. Please do it. Yeah. But बच्चे मत बनना कि you rely on it. हाँ जी, ये भी बोलता हूं मैं. Some people think praying, you rely on praying, and when I pray, things happen. अरे काका इस तरह नहीं है. You know, praying is not a switch on and off button. Yeah, वो सब कुछ अंदर ही है. Yes, Rahul. Bhaiya, you triggered more questions, but I think my time is up. One more question. So when you said about looking inward, I have this constant question that comes to my mind. You know, there are two extremes. One is sometimes when we are in a really good acceptance level, and the other extreme where we are in total denial. You know, and it is very difficult to understand whether I'm actually in acceptance or whether I'm in denial, because in both the cases, I'm doing some action. So how do I differentiate between whether I'm actually in an acceptance state or I'm in a state of denial? चेहरे पे पता चल जाता है. आपका चेहरा बोलता है. Your face is either relaxed and smiling for no reason, or your face is little stressed and all the things are happening in your face for no reasons. You will know. Okay. There is. अच्छा, बच गए अभी राहुल शादी में ना. सामने वाले के चेहरे से पता चल जाएगा. Acceptance or denial. कभी कभी वहां से बड़े प्यारे प्यारे लड्डू मिलते हैं यहाँ पे, धाड़ 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 लाल हो जाते हैं सब. तो ऐसा नहीं है. It's your being. You feel the feeling of oneness, feeling of joy, feeling of expansion. You know you are in that space. And sometimes it just all crumbles down. Life is all about both happening or many things happening. Life is not about only one thing. Yeah. Though it is all about oneness. There are so many more questions, but probably at a later time when I get the next chance. Part two.
Thank you so much, Bhaiya. It was a really nice conversation. Thank you, Bhaiya. So I encourage. I mean, Rahul, really lovely questions, and it's good that we can do सीधी बात दिल से दिल तक and not put it online, because online में मैं बहुत से पूछता हूँ, right? So I encourage all of you to participate on Wednesdays, and whenever you want, please tell Prashantji that you want to be the next one and ask me direct questions. We really had some direct questions and some different new perspectives. Jo, I think Facebook people have already started asking what's happening. Why we I said Sukevia will be on Facebook as and when required, but these will be exclusive sessions now. So now we have Kriti with her some interesting questions. Hi, Kriti. वेलकम. प्रशांत जी एडिट करके डाल सकते हैं कुछ ये वीडियो. हाँ, एडिट करके डाल. हाँ भैया, ठीक है. ओके. जय गुरुदेव भैया, चरण स्पर्श. कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया. वेरी नाइस. हैप्पी लोहड़ी. हैप्पी लोहड़ी भैया. मेरे 2-3 क्वेश्चंस है भैया जो मैं अपनी ही लाइफ से रिलेट करती हूँ, प्रोफेशनली और पर्सनली. हाँ, पूछो ना. तो प्रोफेशनली तो ये है कि जैसे आप बहुत ही जोश में होते हैं, जब भी आप काम करने के जोश में होते हैं, आप जिंदा दिली होते हैं, आप अपने काम को परफेक्टली करना चाहते हैं, तब आपके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल पीक पर होता है. आपका पोटेंशियल आपको मतलब वो बाउंड्रीज भी नहीं पहचानता है, वो आपको अप टू द लेवल लेकर जाता है, आप वो करते हैं. लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं वो काम करने की फ्लॉलेसनेस जो होती है, वो ईज जो होती है, वो छूटती हुई सी दिखती है. कैसे? जैसे मैंने बहुत मैं अपने रूटीन से आपको रिलेट करके बताऊं. बोलो ना यार. जैसे काम किया 10 घंटे 12 घंटे का मेरा जॉब हुआ, उसके बाद मेरा रिसर्च का काम हुआ, प्लस मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हुआ. तो वो सब कुछ रूटीन के बकायदा चलता है, सब कुछ सेटिस्फैक्टरी चलता है, खुद पर प्राउड फील होता है, सब कुछ अच्छा लगता है. लेकिन जब एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाती हूँ, तब ये लगता है कि वो फ्लॉलेसनेस नहीं है, वो ईज नहीं है काम में. सेटिस्फैक्शन है, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक उबड़ खाबड़ जगह पर हो, जहां पर आपको स्मूथनेस नहीं दिख रही है, अपने अंदर वो शांति नहीं दिख रही है. दोनों बातें बोल रहे हो कि भाई सेटिस्फैक्शन है बस शांति नहीं है. जैसे कैसे मैं समझाऊं, वो साहस और वीरता की भावना है अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम वो पीस छूटती हुई सी नजर आती है, वो खुरदुरा सा दिखता है, वो लुब्रिकेशन नहीं दिख पाता है. थकान से? थकान तो मेंटल फटीग तो रहता ही है भैया, लेकिन उसी के साथ में वो कंप्लीशन भी रहता है, वो ये भी रहता है कि आपने वो अपने टारगेट्स पर डे के टारगेट्स अचीव किए हैं. तो क्या मैं टारगेट्स के पीछे भागने के चक्कर में उस काम की फुलफिलमेंट को छोड़ती जा रही हूँ? मुझे वो समझ नहीं आ रहा है. आपको अभी प्रश्न भी क्लियर नहीं है. कोई बात नहीं. देखो, ये जो आइडिया ऑफ परफेक्शन है ना, ये आपको बहुत दुख देने वाला है. देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन. परफेक्ट ये पल है ना, ये पल परफेक्ट है. ये पल में, इसके पल में जो भी आप कर लोगे, क्योंकि कृत क्रिया कर्म वो परफेक्ट नहीं होता है. कृत क्रिया कर्म आज जो भी किया उसको कल आप बेहतर कर लेते हो ना. If you can improve anything of today and improve it and make it better tomorrow, then काय को किस चीज के पीछे भाग रहे हो? परसों फिर उसको improve कर लोगे, तरसों फिर improve कर लोगे, and that is what is called evolution.
The idea of evolution is you're evolving into what, where, how, that we don't know. तो satisfaction और जो जो कहते हैं ना sense of contentment, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको करके satisfaction मिले. ये बड़ा dangerous loop है. जो इंसान हमेशा सोचते हैं कि मैं करूं और उससे satisfaction और contentment पाऊं, कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता. कोई भी नहीं करके satisfaction पा सकता. हाँ जी. एंथुजियाज्म को, आपका एंथुजियाज्म जो है उसको ऊपर रखने की जिम्मेदारी आप ही की है, और किसी की नहीं है. Nobody is responsible for your self motivation. Don't seek any self motivation from outside. So be happy कि आपके अंदर वो self motivation है और enthusiasm है और आप अपना काम पूरी तरह कर लेते हो. But at the end of the day, if you're seeking that satisfaction outside of you, from your job, from your work, from your relationship, बड़ा जोर के गिरोगे काका जी. वो कहते हैं ना, मुंह के बल गिरोगे, आगे के दांत टूट जाएंगे सारे. नहीं भैया, वो सेटिस्फैक्शन आउटसाइड नहीं देख रही हूँ मैं, पर मुझे लगता है मैं अपना सवाल नहीं अच्छे से पूछ पा रही हूँ. इसीलिए मैं आ रहा हूँ. मन की शांति, सेटिस्फैक्शन जॉब से रिलेटेड भी है, सेटिस्फैक्शन काम से रिलेटेड भी है, हर तरह से रिलेटेड है, लेकिन वो शांति को नहीं छू पा रहा है. शांति को नहीं छू पा रहा है. मैं कैसे इसको पुट करूं? शांति को अगर नहीं छू पा रहा है तो सेटिस्फैक्शन आप वर्ड ही यूज नहीं कर सकते. क्या आप सेटिस्फैक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं? भाई मेरे को भूख लगी है, मैंने 2 रोटी खा ली, अब मेरा पेट शांत हो गया. ये सोच रहे हैं, ये मैटर वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में तो ये समझ में आता है, बट फीलिंग्स में, इमोशंस में, इंटरनल माइंड में ये चीजें नहीं होती है. आप जितना भी कर लो, पीस जो बोलते हैं ना, वो आपको मैं आपका उत्तर दे रहा वाला था, अपने बीच में आ गए. कोई बात नहीं, अब आप ये सुनो. जिस पीस की आप बात कर रहे हैं वो पीस नहीं कहते उसको. उसको क्या बोलते हैं? देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेस्टलेसनेस इन आवर सिस्टम. जिसको आप पीस बोलते हैं ना, वो पीस नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल पीस है. आपकी अगर मेजर करके आपने पीस कर ली, अभी भी जो आप सोच रहे हो ना, जिस तरह से मैं बोल रहा हूं और आप उसको तोल मोल रहे हो दिमाग में, सो दिस इज ऑल मेजरमेंट हैपनिंग. ये इंटेलेक्चुअल है. satisfaction, love, peace, they don't erupt from space of intellect. ये तोड़ मरोड़ मेजर करके, नाप तोल के पीस नहीं मिलती है, नाप तोल के सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है. रेस्टलेसनेस होती है. आप जिस चीज की बात कर रहे हैं, शरीर में रेस्टलेसनेस होती है तो खाने से मिट जाती है. बुद्धि में रेस्टलेसनेस होती है. बुद्धि को अपने हिसाब से उत्तर मिल जाए, थोड़ी देर के लिए बुद्धि शांत हो जाती है. ये सुनो, मन की, माइंड की भी रेस्टलेसनेस होती है. या माइंड में वो क्लिक होता है ना, आहा मूवमेंट होता है, तो माइंड भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है. तो अलग अलग जो आपके लेवल्स हैं. ईगो तो कभी भी, हे राम, ईगो तो रेस्टलेस रहता ही है. ईगो तो उसका पर्पस ही है, नहीं तो आपका शरीर, आपका जन्म लेना ही स्थूल शरीर में खत्म हो जाएगा. नथिंग रॉन्ग विद इट. बट आप ये बात समझो कि जो आप कह रहे हो कि मन में शांति है नहीं, वो क्योंकि आप उसको तोल रहे हो, आप कहीं ना कहीं मेजर कर रहे हो. आपके दिमाग में एक आइडिया है और वो उस आइडिया तक आप पहुंच नहीं पा रहे हो. आपने अपने लिए कोई आइडिया क्रिएट कर लिया. योर आइडिया ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस एंड शांति इज ओनली योर आइडिया. इट इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल थिंग. जब आपको मिलेगा, वो कहते हैं जब आपको ब्लिस मिलेगा, जब वो टोटल अवेयरनेस मिलेगी, जिस दिन आपने वो टेस्ट कर ली ना, ये सारे प्रश्न अपने आप गिर जाएंगे. हाँ जी. कभी प्यार हुआ है किसी से? कभी प्यार हुआ है काका? जब प्यार होता है ना, तो हमारे दोस्त लोग बता क्या बोलते हैं, इससे, तेरे को इससे प्यार हो गया और तेरा दिमाग खराब है.
ये भी कोई बंदा है? मतलब ना इसकी ना आंख है, ना आंख है, ना बोलना आता है, ना तमीज है, इससे तेरे को प्यार हो गया? और फिर आप क्या बोलते हो? हाँ यार हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। सो योर हार्ट कनेक्ट्स टू अनदर वन। आकर्षण बोलो, वो सब बोलो, आप किसी और से कनेक्ट कर जाते हो। क्यों? क्या? उसमें मेजरमेंट खत्म हो जाता है सारा। आप मेजर ही नहीं करते। वो सामने वाला जो होता है वो बेवकूफियां भी करते हैं, आप उसको तोलते ही नहीं। हाँ, हनीमून पीरियड के बाद। उससे पहले तो आप तोलते ही नहीं, उसके बाद शादी के बाद तो आप थापी लेके पीछे पड़ जाते हो उसके। वो एक अलग लाइफ स्टाइल है, वो फेज 2 ऑफ लाइफ है। बट आप ये सोचो, क्रिया में, एक्शन में, कर्म में कभी भी इस पल में कंप्लीटनेस होती है। वो इंटेलेक्ट को समझ नहीं आता है, नहीं समझ आता है इंटेलेक्ट को, क्योंकि इंटेलेक्ट रेस्टलेस होता है। इंटेलेक्ट को और कुछ और, नेक्स्ट, इफ आई हैव दिस। अगर आपके पास एक डिजाइन का एक कपड़ा है, या एक सेलफोन है, या एक चप्पल है, एक जूता है, 6 महीने बाद बोर हो गई, इससे नया चाहिए। लोग अपनी ही चीजों से बोर हो जाते हैं, नया चाहिए। वो देखते ही नहीं कि मेरा इंटेलेक्ट रेस्टलेस है, मेरे को चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे को अपने इंटेलेक्ट को शांत करना है, वो नहीं दिखाई देता। सो द शांति आप कह रहे हो, ढूंढ रहे हो, दैट इज पैसिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्ट, दैट इज नॉट शांति। आप ये बात शायद अभी नहीं समझोगे। हाँ जी, अगर आपका इंटेलेक्ट में प्रश्न ना उठे, इंटेलेक्ट में उत्तेजना ना हो, मन बिखरा ना हो, दैट इज नॉट शांति। वो मेडिटेशन में वो एक स्पेस आ जाती है जिसको हम इसमें मेंटल एक्टिविटी कम हो जाती है, इंटेलेक्ट कम हो जाता है, ब्रेन इंपल्स ठहर जाती है। हम कहते हैं ओ आई एम फीलिंग वेरी पीसफुल, दैट इज नॉट पीस। Peace is despite disturbance. Something that the balance that you experience despite disturbance, that is peace. Peace is not absence. Anji, peace is not absence of intellect or measurement or tol matol. No, that is not peace. वो आपको ऐसा लगता है, इसीलिए आप स्पिरिचुअल पाथ पे आए हो, इसीलिए आप गुरुदेव के साथ आए हो, अपने हार्ट लिविंग में क्रिया ये सब कर रहे हो, क्योंकि यू विल रीच देयर वन डे। अभी नहीं, अभी पहुंचे नहीं हो, अभी धीरे धीरे पहुंचोगे। अभी तो एक कॉन्टेक्चुअल पीस मिलता है, ये हो गया तो अच्छा लग रहा है, ये नहीं हो गया तो नहीं अच्छा लग रहा। अगर आप में पीस ऑलरेडी होती तो कुछ करते ही ना। हाँ जी, अरे गेटिंग दिस? अगर आप में पीस होती तो आप प्रश्न भी ना पूछते, पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस है। वो रेस्टलेसनेस तक पहुंचना है, उसके अंदर झांक के उसको देखना है, एंड देन यू एड्रेस इट देयर। तो प्रेम की जो रेस्टलेसनेस होती है उसको प्रेम ही बुझा सकता है, उसको वस्तु जगत से नहीं बुझा सकते। चेतना की जो रेस्टलेसनेस है उसको चेतना ही, अवेयरनेस से ही बुझाया जा सकता है। हम सोचते हैं उसको नाम, औदा, मेडिटेशंस, बड़ी सारी चीजें से कोशिश करते हैं कि उसको बुझा दे, नहीं होगा वो कभी भी। इसलिए जॉब में, क्रिया में कहीं ना कहीं आपको एंथुजियाज्म लगता है, कर लिया, अच्छा लगा, गोल भी ले गया, बट कहीं ना कहीं शांति नहीं महसूस होती है, कहीं ना कहीं अंदर रेस्टलेसनेस बनी रहती है। तो चलते रहो काका, अभी अभी तो स्टार्ट की है अपनी जर्नी, इसलिए सेवा जरूर करना चाहिए। सेवा करते 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 करते, सेवा करते करते, पहले इंसान सेवा करता है क्योंकि किसी ने कहा था, किसी ने कहा था, कोई मेरा दोस्त मिल गया था, उसने कहा चलो सेवा चलते, साथ मिलके सेवा कर रहे हैं। फिर कभी गुरुजी को मिलते, गुरुजी कहते चलो सेवा करते, फिर गुरुजी के कहने पे सेवा करते। पर कभी धीरे धीरे करने में वो सेवा, किसी का चेहरे पे स्माइल आने से आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है, आपको पता चल रहा है। वो धीरे धीरे वो बाहर की जर्नी से, जैसे मैंने प्रेयर की बात करी कि वो प्रेयर बाहर करते करते कहीं अंदर एक द्वार खुल जाता है। बाहर प्रेयर करते करते कभी कभी अंदर की अवस्था चेंज होने लग जाती है, वो भी होता है। वैसे ही बाहर सेवा करते करते कहीं अंदर का जो द्वार खुलना शुरू होता है, फिर शांति, वो मस्ती, वो महसूस होने लगती है। इसीलिए हम सब टीचर लोग जो हैं, आप सब लोग को बोलते हैं कि भाई सेवा करो, सत्संग करो। हम इसलिए नहीं कहते कि आप पकड़ पकड़ के लोग लाओ हमारे कोर्सेज में भर दो, वो भरने से आप ही का फायदा होना है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है।
Are you getting this? जब आप किसी इंसान से कनेक्ट करते हो, बात करते हो, बातचीत करते हो और वो आपके भरोसे पे आ जाता है, पता है आपको कितना फायदा होता है उसका? पता है आपको कितनी खुशी मिलती है अंदर से? यस और नो? हाँ जी। तो वो अचीवमेंट है, ठीक है, वो गोल रखो, एंथुजियाज्म बनाए रखो, बट वो शांति की जो बात कर रहे हो वो भी टाइम है। तो भैया जोश में भी ठहराव होता है। एब्सोल्युटली, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल। अगर जोश में ठहराव नहीं है तो जोश आपका किसी और को तकलीफ देगा। वी एज ह्यूमन बींग्स वी हर्ट द सामने वाले को, हम बहुत हर्ट करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम इतना खुश होते हैं और खुशी में कुछ ना कुछ ऊट पटांग मुंह से निकल जाता है। आप किसी भी शादी ब्याह पार्टी में जाओ, वहां देखो इंसान जो बहुत जोश में दिखाते हैं या ड्रामा करते हैं ना, वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ उल्ट पटांग बोल देते हैं। जोश के साथ जो होश नहीं रखता है वो संतुलित नहीं हो सकता। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है। जोश और होश एक ही चीज है। होश में ही जोश पनप सकता है। पाके अगर जोश आ गया, वो क्या कहते हैं, कॉन्टेक्चुअल हो गया ना, वो तो रीजनेबल जोश हो गया। जोश विद अ रीजन इज नॉट जोश। हाँ जी एवरीबॉडी, आपके अंदर एंथुसियाज्म आया बिकॉज ऑफ अ रीजन, दैट इज नॉट, दैट इज डेफिनेटली नॉट जोश। आपके अंदर होश आया, हाँ, उस चेतना ने, उस शक्ति ने आपके अंदर, चैतन्य ने आपके अंदर जोश प्रकट कर दिया, क्योंकि जोश इज अ रिजल्ट ऑफ दैट अवेयरनेस। अपने आप आ जाता है। एक गुरु जब बनते हैं, एक गुरु जो होते हैं, बुद्ध को आया, नानक को आया, गुरुदेव को आया, वो सारी दुनिया में आज 40 साल से गुरुदेव कंट्री में जा जाके उनकी कहानियां अगर आप सुनोगे, मैं आप उनको कहानियां आपको सुनाने, आप हैरान हो जाओगे। आपने याद दिला दिया, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लेडी थी, मैं कनाडा आश्रम चलाता था, तो एक लेडी थी, वो गुरुदेव आए तो वो गुरुदेव के जो कुटीर है, मैं और गुरुदेव एक ही, मतलब गुरुदेव की कृपा है कि मैं उनकी कुटीर का संचालन करता था, मैं उसी कुटीर में रहता था। तो उसको मिलने आई, वो बाहर खड़ी थी, रो रही थी। बाहर बड़े सारे लोग वेट कर रहे गुरुदेव की मीटिंग के लिए, और गुरुदेव का लंच का टाइम हो रहा था। वो बाहर रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो मैं कहा क्या हो गया भाई, आप क्यों रो रहे हो? कहते मेरे को गुरुदेव के लिए खाना बनाने दो। मैं कहा क्यों? कहते जी आज से 25 साल पहले ये पंडित जी, गुरुदेव को गुरुदेव नहीं बोलती, श्री श्री नहीं बोलती, पंडित जी बोलती, पहले गुरु जी को पंडित जी बोलते थे। कहते पंडित जी हमारे घर आए थे, उस टाइम वो 25-26 साल के थे, मेरे को तो पता ही नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स में आए थे, वो रह रहे थे हमारे पास। मैंने कहा अच्छा फिर? कहते जी हम हस्बैंड वाइफ काम पे जाते थे, पीछे से गुरुजी खाना भी बना देते थे और पूरा घर भी साफ कर देते थे। हाँ जी, कौन? श्री श्री रविशंकर जी। उनके लिए आप में से कौन नहीं खाना बनाना चाहेगा? हाँ जी, उनके पास बैठ के कौन नहीं। यही श्री श्री रविशंकर जी वो लेडी के घर का खाना भी सारा दिन बनाते थे और सफाई भी कर देते थे। मैंने कहा आप रो क्यों रही है? कहती मेरे को पता ही नहीं था इतने बड़ी हस्ती है, इतने बड़े गुरु हैं, इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी है। मैं तो इनको सिंपल सा पंडित जी समझती थी। एक दिन पता चला कि वो तमिल थी, साउथ इंडियन। तो कहती हमारे घर से कोई आ रहा था चेन्नई से, तो हमने बोला पंडित जी आप अपना कहीं इंतजाम कर लो, हमारे पास तो एक ही रूम है, हमारे रिश्तेदार रहेंगे, आप कहीं और चले जाओ। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ मैं, और वो बड़े प्यार से अपना बोरिया बिस्तर लेके चले गए। मैं कहा अब क्यों रो रही है? कहती अब मेरे पास समय नहीं है, मेरे को कैंसर है, मैं 6 महीने रहूंगी, 1 साल मेरे को पता नहीं, बट मेरे को लगता है इस इंसान में परमात्मा है, इस इंसान में बहुत परमात्मा की शक्ति है। इतनी सेवा इन्होंने मेरी की, मैं इनके लिए एक टाइम का खाना बनाना चाहूंगी। मैंने सारे कुक्स को बाहर निकाला, मैं बाहर हो जाओ सारे, उसको बुलाया, उसने सारा लंच बनाया और वो लेके गुरुदेव के सामने गई और रो रो के उनको खिला रही है। गुरुदेव इतना प्यार से मिले जैसे कोई पुराना दोस्त मिल जाता है। अरे तुम आई हो, आओ बैठो। फिर गुरुदेव ने उसको भी सर्व किया, दोनों साथ बैठ के खाए वो सब। और मैं वो देख के, जैसे वो कृष्ण सुदामा वाली कहानी होती है ना, वो देख देख के मैं कहा क्या मजेदार है यार ये कहानी। गुरुदेव को आपको क्या लगता है कोई आसान थी लाइफ? अगर गुरु की दृष्टि से देखो, ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं,
भावुक करने के लिए नहीं। और बड़े सारे घरों से गुरुदेव निकले हुए हैं, कभी कनाडा से निकले, कभी कभी यूके से निकले। गुरुदेव की जो लाइफ है, उनके ट्रैवल्स है, उनकी टीचिंग्स है, 40 साल से उनका जीवन आसान रहा है क्या? नॉट एट ऑल। तो उनका एंथुजियाज्म किसने ऊपर उठा के रखा? वो किसी किसी और गुरुदेव की याद कर रहे थे। और भाई कोई तो मिल जाए, मेरे को बड़ा डिप्रेशन है यार, ये लाख लोग मेरे फॉलोअर्स बड़े टेंशन वाले हैं यार। हम 5 लोग अपने घर वालों को संभाल नहीं सकते, इनके करोड़ों अनुयायी हैं। हाँ जी, आप ऐसा करना, एक बॉयफ्रेंड हो ना और 4 घर में रहने वाले हो, आपके पीछे पड़ जाए ना, जीना आराम हो जाएगा आपका। सच बताओ, हाँ या ना? सोचो, करोड़ों करोड़ों फॉलो करने वाले हो, रोज फोन कर रहे हैं, गुरुजी ये हो गया, गुरुजी वो हो गया, किसी का आ गया, किसी का चला गया, किसी का बन गया, किसी का बिगड़ गया। और 24 घंटे गुरुजी को फोन कर करके तंग करते रहते हैं। गुरुजी हाँ मुस्कुराते रहते हैं, कैसे हो, खुश हो ना, ठीक हो। ये आसान काम है? ये आसान काम नहीं है। आपको अपना एंथुजियाज्म, जोश जो है आपके होश से आता है, जो अवेयरनेस में आता है, एनलाइटनमेंट में आता है, वही जोश को संभाल के रखता है। जो कंडीशनल जोश बना के रखता है, वो कंडीशन हट जाती है तो उसका जोश भी थप पड़ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है फिर इंसान। समझ रहे हैं जी? बाकी सब लोग अंगूठा दिखा दो। तो ये कंडीशनल नहीं रखना कुछ भी। हाँ जी, समझ गए ना? और कुछ कृति? हाँ जी भैया। लोग कहते हैं भैया, जैसे व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज, तब आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वो स्ट्रांगनेस से क्या क्या मतलब होता है? स्ट्रांगनेस, उस पैरामीटर को कैसे समझा जाए कि वो किस तरह का स्ट्रांग इंसान होता है, या ये होता भी है? वो भी कंडीशनली है। वो दीज आर ऑल कंडीशनल मेंटल, हाउ डू कॉल, कॉन्वर्सेशंस। बेसिकली एक बच्चे को आपने आगे बढ़ाना होता है तो कैसे बढ़ाते हो? यही लॉलीपॉप, कभी लड्डू देके, कभी कैरेट देके, कभी स्टिक देके। तो ये सब कहानियां सिर्फ वही है। हाँ, यू हैव नथिंग टू लूज मींस व्हाट? एंड यू बिकम स्ट्रांग। तो मतलब आपको सब कुछ घर से बाहर निकाल के, कपड़े वपड़े सब निकाल के, बाहर निकाल के आपको सड़क पे छोड़ दे, हाँ जी, और आपके ऊपर गोली रख के बोला अभी तेरे को गोली मारने वाला हूं, नाउ यू हैव नथिंग टू लूज, यू मस्ट बी स्ट्रांग, फीलिंग वेरी स्ट्रांग राइट नाउ। ये सब बेकार की बातें। थोड़ा सा मेच्योर माइंड की बात समझो। कहने का तात्पर्य ये होता है कि आपके अंदर निडरता कब आती है? व्हेन डू यू फील फियरलेस? वो फियरलेसनेस की स्टेट तब आती है जब इंटेलेक्चुअली यू हैव नथिंग टू लूज मींस व्हाट ऑल यू हैव दैट यू कैन लूज? बताओ मेरे को। घर बार, रिश्ता, पैसा, ये सब। तो उसकी वो किस चीज की बात कर रहे हैं वो तो हम सोचते नहीं। हम सोचते रहते हैं वी हैव नथिंग टू लूज देन वी बिकम स्ट्रांग। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। these are conversations, these are things to say so that you uplift somebody in front of you. अब मैं जो आपको शेयर कर रहा हूँ ये स्टोरीज और ये सब लगाया हुआ क्लास, ये क्यों है? ताकि आप में एंथुजियाज्म बना रहे, ताकि आप में अपलिफ्टमेंट बनी रहे, आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे बने रहो। आर यू गेटिंग दिस? अब आप कह रहे हो नथिंग टू लूज एंड देन यू बिकम स्ट्रांग, सो दैट इज ऑल्सो अ को रिलेशनशिप। हाँ जी। So, ये intellectual correlationship works only in contextual situations. ये बच्चों को खिलाया जाता है, मेच्योर लोग ऐसा नहीं सोचते। Are you getting what I'm saying? So yes, कह सकता हूँ when you have nothing to lose, you become strong. Means you have no else. वो कहते हैं ना, एक छोटी सी बिल्ली को भी अगर आप कॉर्नर कर दो ना, एक कबूतर को भी कॉर्नर कर दो, आप कभी करके देखना, कबूतर को एक कॉर्नर में ले जाओ, वो झपटका मारेगा आपके ऊपर आएगा, because he has nowhere to go. But that doesn't mean that he has become strong. He has nowhere to go. That is the only direction he can go. जब डिफेंस इतना हो जाता है कि अब इतनी मार पड़ गई भाई, अब तो मार का असर ही नहीं हो रहा है, देन यू काउंटर अटैक। दैट इज द ओनली थिंग। दैट डज नॉट मीन कि आपके अंदर शक्ति आ गई है। ये जितने भी पैराफ्रेजेस बनाए जाते हैं, ये जितने भी कॉन्टेक्चुअल ज्ञान की बातें करी जाती है, ये सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि आपको उठाएं, आपके मन को उठाएं, आपको धीरज दें। आप समझ रहे हैं? आपको धीरज दें। डोंट वरी, देयर इज सम हायर पावर,
हम आपके परिवार की तरह आपके पीछे खड़े हैं, तू काका घबरा नहीं। आपने कभी बचपन में साइकिल चलानी सीखी है? याद है जब पापा जी पीछे से पकड़ रहे होते तब तक तो आराम से चला रहे होते, डर नहीं होता, पापा ने पकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है, तो जैसे ही पता चले किसी ने नहीं पकड़ा, पीछे मुड़ के देखे, धड़ाम से गिर जाते। सो दैट सपोर्ट, एवरीबडी सीक्स दैट सपोर्ट। किसी को प्रेयर में भगवान से मिलती है, किसी को गुरुदेव से मिलती है, किसी को किसी, हर इंसान को अलग अलग तरीके से मिलती है। किसी को मेंटल इंटेलेक्चुअल बात करने से मिलती है। एवरीबडी सीक्स दैट सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जो आपके अंदर ही होती है। भाई कुएं से ही तो घड़ा डाल के पानी निकालते हैं, राइट? वैसे ही ये बातें करके, कॉन्टेक्चुअल चीजें करके आपको स्ट्रॉन्ग बनाते नहीं है, आपके अंदर ऑलरेडी वो समझ होती है। When that thing clicks in you, then you come into action. आपको एक्शन में लाने की बात करते हैं, क्योंकि जनरली जब आप एक सेटबैक फील करते हैं, आप पैसिवनेस, बहुत से लोग, isn't it true guys? जब हम सब, बहुत से लोग पैसिवनेस में आ जाते हैं, नहीं करना मेरे को, जाओ मैं नहीं बात करता, नहीं करता, भगवान तो है नहीं, कुछ है नहीं, प्यार नहीं करते आप लोग, पीपल गो इनटू पैसिवनेस एंड सैडनेस, isn't it? फिर आपको क्या बोलता है, ओ भाई यू हैव नथिंग टू लूज, you are at the rock bottom, you have nothing to lose, yeah, so now go up. So ये सब एक स्टूडेंट के क्या कहते हैं, एक स्टूडेंट का लाइफ दर्शाता है। नथिंग रॉन्ग विद इट। मैच्योर जब हो जाता है इंसान, बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, वो इन सब बातों में नहीं आता। फिर उनके लिए बच्चों वाली बातें, जो चीजें आपको 12-15 साल के थे, जब 16 साल के थे, जो तंग करती थी, आज थोड़ा ना तंग करती हैं कृति आपको वो बातें। हाँ जी, वो तंग करती है वो बातें। those issues don't even exist for you. So a lot of those issues are not there unless something major has happened in your life which has shaken you. वो impression रहते हैं। या जब हम बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, या बहुत ही फोकस्ड हो जाते हैं, तब वो डिटैचमेंट क्यों होने लगती है? सिर्फ गोल ओरिएंटेड क्यों हो जाते हैं? nothing wrong in it. Absolute nothing. Why do you see it as something wrong? क्योंकि उसमें वो आत्मीयता का भाव जो होता है वो कम होने लगता है। किसी ने बोल दिया आपको क्या? कोई बोल रहा होगा, ओए अब तेरे से प्यार व्यार नहीं आता है, टेक्स्ट नहीं आते, फोन नहीं आता, दूर हो गई तू। मुझे बोला नहीं गया, मुझे ऐसा खुद से लगने लगा है कि पहले जो तो कृति, जब मैं सीए कर रहा था ना, मेरे दिमाग में बड़ा क्लियर गोल था कि आई वांट टू बी ए सीए। मेरे आई एम वन ऑफ द यंगेस्ट सीएज इन इंडिया अपने टाइम पे। मैं 21 साल कुछ महीने का था, ऑलमोस्ट 22 साल का, व्हेन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब आपको डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना, ना कोई भी चीज अचीव करनी होती है, तब आप अपनी नॉर्मल लाइफ को साइड करके उसमें लग जाते, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाँ जी एवरीबडी, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग इन इट। कहीं ना कहीं जो आपका गोल होता है वो आपकी आत्मीयता को कम नहीं करता, वो आपकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि जब मेरे को एक चीज अचीव करनी है तो मैंने अपने लाइफ में किया हुआ है और कर चुका हूं। 3-3.5 साल का एक वो आर्टिकलशिप पीरियड होता है सीए का, और मेरी आर्टिकलशिप भी खत्म नहीं हुई थी ना, आई बिकेम अ सीए 6 महीने पहले। ये बहुत रेयर होता है। तो सारे लोग वाज लाइक, हो मेरे बड़े बड़े उम्र के 10-10 साल लेते हैं, एंड आई बिकेम सो फास्ट। शायद क्योंकि मेरे को गुरुदेव के पास जल्दी आना था और इस मार्ग पे जल्दी चलना था, शायद ये इसीलिए हुआ। बट ये सब ऐसा नहीं सोचते, ये सब आप सोच के अपने आप को कमजोर कर दोगे कहीं ना कहीं। हाँ जी, जब आपको फोकस लाना होता है, कुछ करना होता है, तो इट इज वेरी नेचुरल यू गेट डिटैच। अच्छा, जो लोग बहुत पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो फोकस होते हैं, अच्छा पढ़ाई फोकस को छोड़ो। मेरे को याद है जब मेरी अम्मा का एक्सीडेंट हुआ एंड शी फेल डाउन, उनका ऑपरेशन था, मैं खाना भूल गया। याद ही नहीं रहता था कब सुबह खाना है, रात को खाना है, खाने पे ध्यान ही नहीं होता था। हाँ जी, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है एवरीबडी? जब कोई घर पे कोई गंभीर बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, आपका ध्यान नहीं जाता। आपका ध्यान अपनी खुशियों पे, अपनी जो चीज लाइक्स पे, जो चीज आप एंजॉय करते हो उस पे नहीं जाता है। इट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। सो प्रॉब्लम पता है क्या है कृति? जो नेचुरल है, जो हो रहा है, जो घट रहा है, हम उसको क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं।
and that is where we get stress. There is nothing wrong with the positive experiences you have. There is nothing wrong with the negative experiences that you experience. Either negative or positive, they are only experiences. They have nothing to do with reality. Anji, everybody, सुन रहे हैं? Neither positive nor negative. They are far away from reality. They are only your personal experience. आपने वो उस पल में एक्सपीरियंस किया, वो जरूरी नहीं है कि वो वापस आएगा, जरूरी नहीं है कोई और इंसान उसी एक्सपीरियंस में आप जैसा रिएक्ट करेगा. हाँ जी, यस और नो? सो आप इतना बोझ लेके काय को जी रहे हो कृति? इतना बोझ नहीं दिमाग पे लो. ये नेचुरल है. इंसान जब वो इतना एक चीज पे फोकस हो जाता है तो दूसरी चीज से डिटैच हो जाता है. वेरी नेचुरल. या फील इट एज पार्ट ऑफ लाइफ. उससे सीखो. उसे क्या सीखना है? जब मैं मम्मी बन जाऊंगी ना, जब मेरे 2-4 बच्चे हो जाएंगे, तो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगी, बेटा तेरे हाथ में 2 पराठे हैं, एक दे दे छोटी को. उस 2 लॉलीपॉप को पकड़ के मत बैठ, अपने भाइयों के साथ शेयर करके खा. Get detached with what you have in your hand. So there are many things you learn in your life and you have to pass it on to the next generation. Are you getting this? So बस करते जाओ. गुरु के पास आना मतलब यही है. Learn, 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 learn and apply, apply. Learn and apply so that you create a next generation, better generation. सबसे सिंपल सी चीज बोलता हूं. कभी सब्जी खरीदी है? खरीदी नहीं होगी, अभी दिख नहीं रहा. टमाटर भी लेने जाएगी ना, तो टमाटर भी अच्छे अच्छे उठाएगी, सड़ा हुआ टमाटर नहीं उठाएगी. सच बोल रहा हूं ना? हाँ जी एवरीबडी. भैया जी 1 किलो सड़े हुए सेब देना. भैया जी एकदम सड़ा हुआ. भैया 1 किलो सड़ा हुआ केला देना. खाओगे कभी? कभी भी नहीं बोलोगे. जब आप यार सब कुछ तोल मोल के अच्छा अच्छा ही तोल के निकालते हो, तो अपने बिहेवियर में भी तो वो तोल मोल के निकालो ना अच्छा से. बेस्ट से बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट से बेस्ट ज्ञान से तोलो मोलो, अपने आप को अंदर डालो एंड देन पास इट ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन. सिंपल. बेस्ट फ्रूट, बेस्ट ट्री पता है कौन सा होता है? बेस्ट पौधा कौन सा होता है? जो नेक्स्ट जनरेशन के बीज पैदा कर रहा होता है. ये हमारे अंदर है, हम भूल जाते हैं. अगर मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन में अच्छी वैल्यू सिस्टम नहीं डाल रहा, तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं अच्छा पौधा नहीं हूं. आर यू गेटिंग दिस? बड़ी सिंपल सी बात है. हाँ जी. इसमें मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं लेनी है. क्या करना है मेरे को इसमें सेटिस्फैक्शन लेने का? आपका प्रश्न ओरिजिनल. अगर मैं ये सब सेशन करके बोलूं, ये सेशन करके राहुल मजा आ रहा है, अच्छा नहीं, अच्छा तो लग रहा है, एंथुसियाज्म तो है, बट कहीं ना शांति नहीं महसूस हो रही. अब बाढ़ में गई तेरी शांति. इतने लोगों का ध्यान करना है, इतने सारे लोगों का को सही रास्ते पे डालना है. हमारे अंदर इतने सारे जो आइडिया बन जाते हैं ना, अपने कॉन्सेप्ट और आइडिया को उठाओ और साइड में रखो और ये बोलो आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग एंड समडे आई एम अप्लाइंग, लर्निंग एंड अप्लाइंग, लर्निंग एंड अप्लाइंग एंड पासिंग ऑन. यही 3 चीजें तो करनी है. नानक की कहता है कृत कर नाम जब वंड के छक. हाँ जी, 3 चीजें बोलता हूं, सेम चीज. लर्न, अप्लाई, पास इट ऑन. हाँ जी एवरीबडी, साफ कर दिया ना? बड़ा सिंपल मैसेज. लर्न, अप्लाई, पास इट ऑन. स्यापा पास इट ऑन करोगे, उड़ के आएगा वापस. प्यार पास इट ऑन करोगे, बढ़ता जाएगा. ठीक है ना जी? गॉट इट? जय गुरु देव. आई थिंक आज का काफी हो गया. ठीक है ना कृति? और भी बड़े प्रश्न है मेरे को पता है, पार्ट 2 आपको भी देंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस है भैया, बहुत सारे कंफ्यूजन्स है. क्वेश्चंस तो नहीं कहूंगी उन्हें, कंफ्यूजन्स कहूंगी. अभी ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मिंग फेज में हूँ, तो कुछ भी नया घटता है तो अचानक से क्लिक होता है, ये तो मैं नहीं थी, ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, ये अचानक से कैसे. बहुत एनालिसिस चलता रहता है. बड़े लोग बड़ा प्यार करते हैं. नहीं कृति देखो, यहाँ पे ना डबल कॉन्वर्सेशन चल रही है. मैं कई लोगों को थैंक यू भी बोल रहा हूँ, कई लोगों को
एक चीज याद रखना, आप सब लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करूं, सिंपल सी, अपने आप को बुरा मत समझना यार। दुनिया आपको कुछ भी समझे, आप बोलो अब भाई मैं तो ठीक ही हाँ, और जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैं इससे बुरा एक्सपीरियंस तो मैं सीख लूंगा, अच्छा एक्सपीरियंस तो मैंने गुलाब जामुन खा ही लिया, ठीक है ना जी। अच्छा टमाटर तो मैंने ले ही लेना है, बुरा है सड़ा गला है सीख लेता हूं उससे, ठीक है ना जी। गॉट इट। तो घबराना नहीं, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है भाई, नथिंग रॉन्ग विद कंफ्यूजन। इन दिस फेज ऑफ माय लाइफ आई हैव कंफ्यूजन, नथिंग रॉन्ग विद इट, आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट, धीरे धीरे अपने आप आ जाऊंगी। यस जी भैया। जय गुरुदेव, खुश रहो, मस्त रहो। आप सबको लोहड़ी पे बहुत बहुत प्यार। अंकित, सी यू सून, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंजॉय करिए, फ्रॉम अटलांटा टू हॉलैंड टू एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, जहां से आप लोग जुड़े हैं, ऑल ओवर इंडिया ऑल्सो, हो बहरीन ऑल्सो, सबको बहुत 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 प्यार। जय गुरुदेव भैया, लव यू। नो चॉइस, नो चॉइस।